Hello student, welcome to the Rihantam Academy YouTube channel. The student today we will talk about that very famous law of that electric current is Ohm's law. Right now, और जैसे ही आपके जहन में ये Ohm's law आता होगा, आपके दिमाग में एक बात फिट होगी and that is called V is equal to IR. Right now, तो इसी Ohm's law की स्टोरी को आज हम लोग समझेंगे and we are able to deduce the formula how we are able to prove that V is equal to IR. Okay, now from that V is equal to IR, we can say that ratio of V to I must be equal to that constant, right now. So we need to understand how these two ratio becomes a constant quantity. Okay, now, so to understand how these two ratio will be a constant, we need to understand what is Ohm's law actually. What does it means, right now? Okay, तो इसका मतलब क्या है वो चीज समझ रहे हैं. Ohm's, it is very straightforward relations between the potential and current of the conductors. तो ये चीज आपको समझना है. तो जैसे मान लीजिए क्या आपके पास दो कंडक्टर्स हैं. You have two conductors of same element, right now, and of same length, same area of cross section. So you have two terminal of the conductors. Like this is the first conductors, and this is the terminal A, and this is the terminal B. So we offered some potential between these two terminals, and let's suppose that a cell is connected with this positive charge of this A terminal, and the negative terminal of the cell is connected with the B terminal. राइट ना, तो कंडक्टर के A को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और कंडक्टर के B टर्मिनल को सेल के B के साथ कनेक्ट कर दिया. अब आपको समझना क्या है, इसे समझिए. If we consider that A is at higher potential and B is the lower potential, and the potential at A is VA and the potential at B is VB, then the potential difference between these two, delta VAB, is equal to the higher potential minus lower potential. Right now, so ये VA higher potential है, VB lower potential. So what Ohms say that कि if we offered some potential difference between two terminal of conductors, then the current is produced by this conductor. तो क्या होगा यहाँ पर, एक current produce होगा, and the current will always flow from higher potential to lower potential. So the current will be in that direction only. So the current is here. Now इसको सीधे सीधा मतलब में अगर समझा जाए तो आप ऐसा समझिए कि अगर A का पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा मान लें कि A का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, हायर पोटेंशियल, एंड B का पोटेंशियल 0 वोल्ट है. सो व्हाट वी हैव सीन, द डेल्टा VAB इज इक्वल टू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 वोल्ट. तो फर्स्ट वी हैव सीन when we offered 100 potential difference between these two terminal of that conductors, then the I amount of current is produced. Then again go for the next experiment. Okay, now what we have seen, if in such type of a conducting element we offered another potential difference of VA is equal to 200 volt, and VB, and this is your positive terminal, this is your negative terminal, and VB is equal to 0, then the potential difference between A to B, VA minus VB, must be equal to the 200 volt. Then again current flow from that A to B. But in both conditions we have seen that the current flow in this experiment is much more greater than these experiments. So what we have seen, if the potential difference increases, the value of current increases. If the potential difference decreases, the value of current is decreases. That means we can say that the potential at constant, that means we can say that the current produced in this terminal at constant temperature and pressure is directly depends upon the potential difference developed between these two terminals. So according to that concept, we can say that V directly proportional to I. Then you can say that from that proportionate relations, you can say that V is equal to Ri, and there R is a constant. This is your constant term. Clear है यहाँ तक, कोई confusion तो नहीं होना चाहिए. Now according to this concept, we can say that the ratio of V by I must be a constant. This is your constant. राइट, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज, करंट लार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस लो, करंट लो, या समझने के आप इसको I2 मान सकते हैं, यहाँ पे I1 मान सकते हैं, और आप कर सकते हैं I2 is greater than I1, since we can say that delta VAB
इज ग्रेटर देन, आप इसको a डैश b डैश बना लो, डेल्टा a डैश b डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा v a b। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हायर है और एक पोटेंशियल डिफरेंस लोअर है, इसलिए हायर पोटेंशियल डिफरेंस में हायर करंट, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस पर लोअर करंट। सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू द करंट ऑलवेज कांस्टेंट, राइट ना। अब हमें इसको प्रूव भी करना, तो पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, राइट ना, कि व्हाट इज द ओम्स स्टेटमेंट, राइट ना, ओम्स लॉ स्टेटमेंट। तो क्या करते हैं ओम साहब, ये चीज समझिए आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the potential difference developed, a potential difference developed between two terminal of conductor, between two terminal of conductor, then current is produced, then the current is produced where potential difference is directly proportional to the current, right now, where potential difference is directly proportional to current, directly proportional to the current, and the ratio of V by I, right now, यहाँ पर लिख देता हूं, and the ratio of V to I is constant, और आपको यही प्रूव भी करना है that V बटा I is a constant, right ना। और यहाँ पर जो constant है, that constant is called resistance of that object. Clear यहाँ तक? So this is your Ohm's statement. Now we need to derive this relation, how these two ratio will be constant, right now. Okay, so wait for 1 minute and take a screenshot. Okay, student, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अब आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट, राइट ना। तो उसके पहले से देखो, आप पहले कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेंगे, देन द करंट विल प्रोड्यूस। यानी कहने का मतलब ये हो सकता है कि अगर आपने किसी कंडक्टर्स में सेल कनेक्ट नहीं किया है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें ये चीज समझना है कि व्हाई करंट कैन नॉट फ्लो इन द कंडक्टर्स विदाउट अ सेल। नाउ जब भी आपने पढ़ा होगा फ्रॉम द एटॉमिक थ्योरी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से मोशन में है, बट the motion of electron is not able to produce electric current। तो पहले हमें वही चीज समझना, what is the reason behind that, okay then। now उस चीज को समझने के लिए we have to understand about the thermal motion of electron in the conductor, कि किसी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल मोशन का क्या मतलब होता है, राइट ना। तो आपने देखा होगा थर्मल मोशंस को समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके पहले दो चीजें आपको पता होना कि लाइक जैसे फ्रॉम द एटॉमिक थ्योरी व्हाट वी कैन से दैट इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस where Z positive charge present and in the orbit electrons is present here, right? So the number of electrons is Z, number of proton is equal to Z. Now you have seen that from the electrostats of interactions, if it is negative charge particles, proton is positive charge particles, and these two particles lies on a distance of d meter, then electrostatic force of interactions works together। जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, that force is directly proportional to the multiple of charge। तो Z is the number of charge E and E, this E is the charge on proton, this E is the charge on electron, so Z E square, and force is inversely proportional to the square of the distance, then the force is equal to K Z square by D square in Newton। तो इतने न्यूटन का फोर्स इनके बीच में काम कर रहा होता हमेशा। ना किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बिकॉज कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बिलियंस हो सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोशन ऑनली। तो हमने बोला क्या कि वी हैव टू कंसीडर कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर्स में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा मान लेते हैं।
and these millions of electrons are present in the atom, so we can say that these conductor consist of millions close packing of atoms. और हर जगह पर एक न्यूक्लियस होगा, हर जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा मान लो ये न्यूक्लियस है, एटम है, न्यूक्लियस है, एटम है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, एटम है, इस तरीके से क्लोज पैकिंग है सबका, राइट ना। सो वी हैव क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन दिस कंडक्टर, and if we suppose per atom there is one electrons present in this atom, then these have one electrons, so these one electrons has random motions, या we can say that atomic motion। अब ऐसा मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में चल रहा, then due to close packing the electron strike together, collide together, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे। कोलिजन से क्या होगा ना, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, यहां पे कोलाइड होगा। ड्यू टू द कोलिजन द इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज देयर पाथ, और जैसे इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा पाथवे, यानी यहां पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है तो वो क्या करते हैं, अपने स्ट्रेट लाइन पाथवे को फॉलो करके एक जिगजैग पाथ का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलेगा। आप इसको ऐसे इंज्यूम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके के पाथवे को फॉलो किया और फॉलो करते करते यहां तक पहुंचा। अभी सरफेस से बाहर क्यों नहीं जाता है, सरफेस से बाहर इसलिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से, kZd² d² फोर्स से, इसलिए दैट इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इजेक्ट आउटसाइड द मेटल सरफेस। देन क्या होगा, न्यूक्लियस से अंदर आएगा, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए, किसी और पाथवे को फॉलो करते हुए अपने वापस पॉइंट पर पहुंचा। तो हमने बोला क्या, ये इलेक्ट्रॉन जहां से चला था आफ्टर मल्टीपल कोलिजन दे बिकम्स या दे रीच देयर। तो कंडीशंस क्या है उस चीज को समझिए। ये इलेक्ट्रॉन x पॉइंट से चला, मतलब इनिशियल पॉइंट से चला और फाइनली इनिशियल पॉइंट पर पहुंच रहा है। Then during this motions the difference in displacement the delta x is equal to x initial minus x final। अब चूंकि इनिशियल भी आई है, फाइनल भी आई है, that must be equal to 0। तो हमने क्या देखा, during the thermal motion of electrons we have seen the initial displacement is 0। तो without say electrons can have motion but they don't have their velocity, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ड्यू टू द 0 डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थर्मल मोशन, राइट ना, कि ये हीट के कारण चलने वाला मोशन है। तो यानी थर्मल मोशन मतलब समझना है आपको यहां पर कि थर्मल मोशन कहने का मतलब क्या हो गया, थर्मल मोशन दैट मींस एवरेज काइनेटिक मोशंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज काइनेटिक motion of electron is called thermal motion of electrons, is called thermal motion of electrons, right ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो ड्यूरिंग थर्मल मोशन नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो दो तीन बातें आपको याद रखना है, नेट डिस्प्लेसमेंट शो डेल्टा x is equal to 0 एंड दूसरी चीज आपको पता करना है इनिशियल वेलोसिटी 0। So initial velocity is equal to 0. That means we can say that during the thermal motion of this electron they have 0 velocity। तो अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन्स को चलाना है, और इस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी कंडक्टर्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देते हैं। सो नाउ वी हैव टू डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्मिनल। तो ध्यान देखिए, जब हम पोटेंशियल डेवलप कराते हैं तब क्या होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, यू हैव अ कंडक्टर विद द मिलियंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा, कोई इधर चल रहा होगा, कोई कहीं चल रहा होगा। तो रैंडम डायरेक्शंस है, अपनी मर्जी का होगा, जैसे मन तैसे चल रहा होगा। आप कह सकते हैं रैंडम डायरेक्शंस का एग्जांपल होता है कि जैसे अगर हम लोग आपने देखा होगा स्कूल ऑडिटोरियम में अगर बच्चे प्रार्थना के लिए आते हैं और जब प्रार्थना खत्म होता है तो दे हैव रैंडम मोशन, सबका अपना अपना मोशन होता है, अपने मर्जी के मालिक होते हैं। सो इन थर्मल वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन हैज देयर ओन पाथ,
टू फॉलो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसलिए यहाँ पर किसी का मर्जी नहीं चलता है। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को गाइड करेगा एक डायरेक्शन में माइग्रेट होने के लिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हम दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करते हैं तो क्या होता है, तो समझना है क्या हमें यहाँ पर देखो कि जब हमने इस पोटेंशियल मतलब इस करंट के या इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मोशंस में था, जैसे ही हमने दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, आपने पढ़ा होगा that the electric field has been developed from positive charge to negative charge। तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पॉजिटिव है बिकॉज इट इज इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनटुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव फील्ड क्या करता है, तो पॉजिटिव फील्ड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शंस वो क्या करेगा, रैंडम मोशंस में नहीं जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ड्रिफ्ट हुआ। ये जो इधर जा रहा था वो इस डायरेक्शंस में नहीं जा करके वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में शिफ्ट होगा। ये इस डायरेक्शंस में नहीं जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर रहे हैं। All the electrons have now only one motion and they move towards the positive charge, यानी opposite to the electric field offered in the conductor। तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं they have their own path opposite to this electric field developed by the potential difference, यानी ये मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हो रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट ना, तो ये सब के सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ दे हैव देयर वन लीनियर मोशंस टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट ना, तो एक तरीका है, इस तरीके के मोशंस में ये चल रहे हैं। अब चीज समझिए, क्या सभी इलेक्ट्रॉन सेम पॉइंट से डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं, सब अलग अलग पॉइंट से डिस्प्लेस हो रहा है। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट दैट मींस दीस इलेक्ट्रॉन्स हैज डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग वही एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि अगर किसी एक की इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मीटर पर सेकंड है, इसकी u2 मीटर पर सेकंड है और इसका un मीटर पर सेकंड है, तो इसका कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकालेंगे, दैट फाइनल वेलोसिटी दैट v दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, that drift velocity is the average velocity of electrons in the presence of electric field, in the presence of external electric field, external electric field, right ना, external electric field। तो ये एक external electric field में चलेगा, तो जिसकी velocity u1 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण v1 हो गई, इसकी v2 हो गई होगी, इसका vn हो गया होगा। तो व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द वेलोसिटी, राइट ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी vd इज इक्वल टू वी कैन राइट v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट ना। तो ये कंडीशंस होता है जिसके बेसिस पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। यहां तक क्लियर है, आई थिंक सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी क्लियर। मैंने ऐसा इसलिए पढ़ा दिया अभी कि जिसने मान लो जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, उसको डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मान लो पहले आप समझ लो इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल मोशन होता है, फिर उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर करंट प्रोड्यूस होता है, राइट ना। तो यहां तक बात करेंगे, फिर आगे देखते हैं, अभी इसको प्रूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने दो तीन बातें समझा है। सबसे पहली बातें हमने ये समझा कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर्स, देन द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी ऑफर। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रहेगा तब तक ड्रिफ्टिंग होगा, एंड not only single electrons is drifted,
all the electrons present inside the conductors under the influence of electric field has ability to drift. तो कितना ड्रिफ्ट मोशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, इस ड्रिफ्ट मोशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड समझना है, और वो टाइम पीरियड होता है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड. क्या होता है आपका? रिलैक्सेशन टाइम पीरियड. ओके, नाउ उसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन तो होता है, बट ड्यू टू द थर्मल मोशंस द नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पर. तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा. दूसरा जो कॉन्सेप्ट अभी समझना है यहाँ पर, दैट व्हाट विल बी द रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो ध्यान देखिए क्या होता है. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द थर्मल मोशन, यानी आपके पास ये कंडक्टर है, एंड इन दिस कंडक्टर इफ यू हैव मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा होता है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन के कारण कुछ इस तरीके के पाथवे को फॉलो करता हुआ वापस आता है, तो हम लोगों ने बोला क्या, इस टाइम से यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में जो टाइम पीरियड लगाएगा उसको हमने बोला t, एंड ये पहला इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं t1. हाँ, अब वहीं पर जैसे मान लीजिए क्या, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके के कोलिजन टाइम पीरियड को फॉलो कर रहा था, तो क्या दोनों के लिए लगने वाला टाइम सेम होगा कि अलग-अलग होगा? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, ये इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है. डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली जीरो होगा, लेकिन इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है. तो यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टाइम अलग होगा. यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कम टाइम होगा. बट व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग इज, अब आपको ये चीज समझना है. देखो, जिस तरीके का कोलिजन ये पहला इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, उसी तरीके का कोलिजन कभी ना कभी ये इलेक्ट्रॉन्स भी फॉलो करेगा. मतलब अल्टीमेटली हर इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन एक जैसा होगा, बट नॉट द सेम टाइम, अलग-अलग टाइम पीरियड. तो अगर इसी अलग-अलग टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट पर अगर किसी और अनदर इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया जाए, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t3. वैसे ही अगर nth इलेक्ट्रॉन्स है और nth इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन टाइम पीरियड, जैसे मान लें nth इलेक्ट्रॉन्स nth इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कोलिजन टाइम पीरियड अगर ऐसा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t. तो हमने बोला क्या, एक बार ऐसे चल रहा है, 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 तो एक टाइम पीरियड हम निकालेंगे. देन दैट टाइम पीरियड विल बी द एवरेज टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, एंड दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड. तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, एंड दैट इज योर टाउ. इसका डिनोशन टाउ से होगा. तो क्या लिख सकते हैं? इट इज एवरेज सम ऑफ, it is average sum of time interval of, it is average sum of time interval of each successive collision between two electrons, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो सक्सेसिव कोलिजन टाइम पीरियड होता है, उसका एवरेज निकालने का आपको रिलैक्सेशन टाइम पीरियड मिलेगा. यानी यहां से निकालने तो क्या हो जाएगा? द टाउ इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn डिवाइडेड बाय nth इलेक्ट्रॉन. तो एक चीज तो ये आपको समझ में आ जाएगा. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए vt निकल गया, चाउ निकल गया. अब आपको एक्सेलरेशन पता करना है. तो देखिए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, वो चीज समझिए. तो एक्सेलरेशन, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन. और आपने पढ़ा होगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, व्हाट वी हैव सीन दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक तो कॉन्सेप्ट लिखा था, क्योंकि चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास. अगर चार्ज के अंदर मास है तो वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा. देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इट इज द मास नेचर ऑफ एक्सेलरेशन या मास नेचर ऑफ फोर्स. अब दूसरी चीज समझिएगा, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम मोशन के कारण किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और सडनली हमने क्या किया, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पॉजिटिव है, देन द इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू E टाइम्स E. तो क्या होगा, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, that electrons start migrating and they will start drifting. Drift होने के कारण उसमें क्या होगा, एक acceleration produce होगा. In that way we can say that force experienced by the mass and force experienced by the electric field will be same. Then we can write
mass into acceleration is equal to E times E, then A is equal to E times E by m। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम मिल गया, यहाँ से A मिल गया। और आपने पढ़ा था अभी इसके पहले हमने आपको बताया था दैट Vd इक्वल टू क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n। तो इसी मोशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। देन फ्रॉम द फर्स्ट मोशन व्हाट वी कैन राइट, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस A इनटू T1, V2 is equal to U2 plus A into T2। वैसे ही Vn is equal to Un plus A into Tn। अब देखिए इस फॉर्मूला में इन सब के वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, तो जैसे इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे एक फाइनल फॉर्मूला आपको मिलेगा। पहले इसको एक बार क्लिक करें, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है, अभी हमें देख लेते हैं यहाँ पर। देखो अब सबकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो क्या मिलता है आपके पास, जब हम ये सारे वैल्यू इस फॉर्मूला में रखते हैं व्हाट यू विल गेट Vd is equal to V1 plus V2 plus Vn। V1 is equal to क्या मिलेगा आपके पास U1 plus AT1 plus U2 plus AT2 plus UN plus ATN डिवाइडेड बाय n। अब देखिए जितना भी इनिशियल वेलोसिटी है सबको एक साथ, एक्सेलरेशन टाइम को एक साथ कर लेंगे, देन Vd is equal to U1 plus U2 plus UN डिवाइडेड बाय n प्लस A कॉमन है, A कॉमन ले लीजिए, T1 plus T2 plus Tn डिवाइडेड बाय n। अब देखिए ये जीरो था इसलिए Vd is equal to क्या आ गया A into T1 plus T2 plus Tn डिवाइडेड बाय n क्या था आपके पास टाउ था। अब एक्सेलरेशन के जगह पर क्या फॉर्मूला आपके पास E by m, इसलिए क्या रख सकते हैं यहाँ से Vd is equal to E tau by m, क्योंकि आपके पास A is equal to क्या है E by m। So according to that phenomena we can calculate the drift velocity of the electron is E times tau by m। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब हम आगे समझ सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व द ओम्स लॉ। क्लियर है यहाँ तक ओके बच्चों। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की ओर, राइट ना। चलिए अगले पड़ाव की, तो आपके पास दो तीन फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। असली फॉर्मूला जो काम का है आपने देखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E by m एंड Vd इज इक्वल टू आपने पढ़ा E tau by m, राइट ना। इन सब की रिक्वायरमेंट है अभी आपको, ठीक है ना ओके, यहां तक क्लियर है ना। अब एक चीज आपको समझना है, रिलेशन बिटवीन Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन समझते हैं और तब जाकर के हम ओम्स लॉ को वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू द इलेक्ट्रिक करंट। ओके ध्यान दीजिए, आपने अभी तक क्या समझा कि जब तक व्हेन वी ऑफर्ड सम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द मेटल देन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, यानी सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना ही पड़ेगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्ट माइग्रेटिंग, स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, और उसी ड्रिफ्ट के कारण करंट क्या होता है फ्लो होता है। तो हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट exactly we have seen that the current is equal to charge per unit time। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पर T ही लिख देता हूँ पहले, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट होता है वो नॉर्मल टाइम के कारण या रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के कारण? तो आपने देखा था रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के कारण। देन हियर वी कैन राइट T is equal to tau, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं ड्रिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो एवरेज टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। देन I is equal to क्या हो जाएगा Q by tau। So only you have to calculate the charge flowing in the conductors through a area of cross section। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना, चार्ज फाइंड आउट करना। ओके अब ध्यान से देखिए, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, एक कंडक्टर लेट कर लो, राइट ना। तो एक कंडक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इन दिस कंडक्टर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज n, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n, राइट ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n। देन यू हैव सीन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करता है, q इज इक्वल टू n टाइम्स e, जहां पर n is the total number of electrons present in this conductor and e is the charge flowing as electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक चार्ज कितना होता है, -1.6022 into 10 to -19 कूलम, तो उतना चार्ज फ्लो होगा, राइट। अब एक बात बताइए, क्या सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आप इसके अंदर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन। इन छोटे से क्रॉस सेक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ये लेट कर लेते हैं, राइट ना। सो दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज a and the distance from these two is x मीटर। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से माइग्रेट होना स्टार्ट, यहां से माइग्रेट होना स्टार्ट। जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से माइग्रेट स्टार्ट होना शुरू किया तो देन x लेंथ डिस्प्लेस होने में कितना लगाएगा, देन x इक्वल टू vd टाइम्स टाउ। आपने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, मोशन इनटू टाइम, तो vd इनटू टाउ हो जाएगा, दैट इज योर x, vd इनटू टाउ। अब एक चीज समझिए, क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन से यहां से चला या कुछ इलेक्ट्रॉन से यहां से चला, तो कुछ इलेक्ट्रॉन से यहां से चला। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन चला उसको लेट कर लेते हैं n, एंड दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देन फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन राइट दैट n इज इक्वल टू n by v, and we have seen v is equal to area into x, then we can write a into x। now again that n is equal to n by a into x, a into x कितना है यहाँ पर, तो दैट में देखिए a into x जो है आपके पास a vd टाइम टाउ, vd टाइम टाउ, इसलिए n is equal to क्या हो जाएगा, n a vd into टाउ। अब देखिए खुद आपके पास n तो कैलकुलेट हो गया, देन q कैलकुलेट कर लीजिए, देन q is equal to n times e, then n is equal to n a vd tau into charge on the electron. So this is your number of electrons, this is your charge on one electron. तो q निकल गया आपके पास, I is equal to q by t है, q आपका कैलकुलेट हो गया, इस चार्ज को यहाँ पर रख के टाउ से डिवाइड कर दीजिए, then you will get I is equal to q के जगह पर क्या है, n a vd tau into e minus divided by tau, tau से tau कैंसिल आउट हो गया, सबको अरेंज करके लिख दीजिए I is equal to n e v d a, we can write नेवदा, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, नेवदा पढ़ सकते हैं, n e से ने, v d a से वदा, नेवदा पढ़ सकते हैं। सो करंट इज इक्वल टू नेवदा। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो इस तरीके से करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। देन I is equal to n e a v d a, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब इसमें हमें क्या करना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है वो रखना है और उसके बेसिस पर आपको ओम्स लॉ का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आपके पास देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका क्या है, e टाउ बाय m, e टाउ बाय m लिख सकते हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से हम लोग एक फार्मूला डेवलप कर लेंगे, राइट ना। ओके गुड। अब देखो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, हमारा बस खत्म होने वाला है, समझ है ना। ओके तब देखिए यहां तक कनेक्टेड रहिए। अब देखिए यहां से बेटा हमारे पास आ गया करंट, आई हैव I is equal to n e v d a, राइट ना, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास है दैट v d is equal to e tau by m,
तो जो फार्मूला है उसके हिसाब से यहाँ पर रखते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर रखेंगे, देखिए ठीक है ना, VD की तरफ यहाँ पर रख देते हैं, देन I इज इक्वल टू NE, VD की तरफ मैं रख रहा हूँ E टाउ बाई M इंटू A। अब थोड़ा सा इसको एक बार और अरेंज कर दे रहे हैं, I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाय M इंटू E। अब आपके पास एक रिलेशन आपने अगेन पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L मीटर है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? E इज इक्वल टू V बाय L, E इज इक्वल टू V बाय L, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द करंट। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से? V बाय L, देन I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ बाय M इंटू V बाय L। आगे समझ में अब देखिए, I को इधर भेज दीजिए, बाद बाकी सब कुछ उधर भेज दीजिए, बाद बाकी अगर सब कुछ उधर भेजेंगे, I को इधर भेजेंगे, देन क्या आ गया? सब कुछ उधर भेजिए, M L N E स्क्वायर A टाउ इज इक्वल टू V बटा I। ठीक है, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब समझना क्या है कि V बटा I इज इक्वल टू, आपको सिर्फ कांस्टेंट प्रूव करना था। इसमें कौन कौन सी बातें कांस्टेंट है उस पर ध्यान रखिए। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट होगा। N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट होगा। A इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट होगा। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट होगा। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, कांस्टेंट होगा, राइट ना। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही तो हमें प्रूव करना था कि V बटा I इसका तो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिस्टेंस होना चाहिए। सो दिस इज योर रेसिस्टेंस, राइट ना। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं एक बार और, एक सेकेंड और बेटा, देखो दिस इज कांस्टेंट। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, देखो यहां पर है ना, इस तरीके का रिलेशन हमें मिला और उस रिलेशन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, है ना, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या हमें यूज करना है। तो डाटा देखिए, आपके पास है V बटा I, हमारे पास है V बटा I इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस एंड V बटा I इज इक्वल टू ML NE स्क्वायर A इनटू टाउ। अब इसमें से दो चीज और है, देखो है ना, इसमें दो चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर चेंज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर नेवर चेंज, A इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स नेवर चेंज, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड विल चेंज व्हेन टेंपरेचर इज डिफरेंट। बट टेम्परेचर अभी डिफरेंट नहीं करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। सो इफ ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, देन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द टाउ विल बी आल्सो कांस्टेंट, बट वी कैन इंक्रीज द लेंथ and we can increase the area of cross section of the conductor. So these two are the variable and these are not the variable. Then ध्यान से देखिए, V बटा I is equal to, जो variables हैं उसको एक बार फिर से अलग करते हैं, M NE स्क्वायर टाउ, ये कांस्टेंट है, किसी भी सिचुएशंस में नहीं बदलने वाला, L by A। अब देखिए यहां से अगर ये पूरा का पूरा रिलेशन R है, रेजिस्टेंस है, देन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स L by A, यानी L by A तो आपके पास समझ में आ रहा है। तो दिस कांस्टेंट, दिस क्वांटिटी इज द रेसिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। सो V बटा I इज इक्वल टू रो इनटू L by A। अगेन ये रिलेशंस प्रूव होता है कि ये रो जो है वो क्या है? रेसिस्टिविटी कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ से दो तीन बातें आपको बाहर करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर आप चीजें समझ सकते हैं। तो दैट मीन देखिए क्या क्या चीज हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। इसको मिटा देता हूँ, आप सबको आई हो समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। इस पूरे रिलेशंस में आपको दो नई बातें समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, M NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A, जहां पर रो इज इक्वल टू M NE स्क्वायर टाउ होता है। एंड दिस इज योर रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, resistivity constant, and this is your resistance, this is your resistance। क्लियर है बच्चों?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा देन सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड फॉर द further lectures. Okay friend, good luck and stay safe from the corona, because again this is the pandemic disease coming back into the second generation right now. So we have to stay safe and take healthy food, take healthy diet and increase your immune system right now. Thank you very much.